Hello friends, welcome to you all. Today we are going to learn a story of an intelligent man. And the story's name is Gopal and the Hilsa Fish. Okay? You must know about the title and the story type. The title is Gopal and the Hilsa Fish. In this title, Gopal is the name of an intelligent man and Hilsa is the type of popular fish. Okay? This story is not a script or the written format. This is a comic type of story. Okay, you can see in the textbook. In the title, there is a name of an intelligent man, that is Gopal. He is a man living in the kingdom of a king, and Hilsa is the name of a popular fish. What happens in the story? Just overlook first of all. Everyone in the kingdom is talking about Hilsa fish. It was the season of monsoon and the Hilsa fish. Okay. By hearing this name again and again by all the people in the kingdom makes king angry. Gopal was the courtier in the court of the king. Okay. Then king gives the challenge not to speak or not to take a name of Hilsa fish for just 5 minutes. Then the intelligent Gopal accepted the challenge. He changes his appearance as a beggar and caught 2 Hilsa fishes, okay, in his hand, and he goes from market to the court. But everyone is surprised looking a filthy beggar. No one is looking to Hilsa Hilsa fishes and even talking about it. But they only talking about the beggar, means the Gopal. He went to the king and told whatever happened with him and what does he do. And in this way he won the challenge given by the king. The king also accepted it that Gopal is an intelligent courtier in the kingdom. So children, we are going to learn the story in detail from your textbook. So guys, look at your textbook. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. Okay, you can see here some of pictures and some of dialogues uttered by the characters in the story. Here the format of the story is comic. Okay, look at the picture. There are some fishermen and they are catching the fishes. Okay, it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. यहाँ पे जो लोग हैं, मछुआरे हैं, वो अभी मछली पकड़ने में बिजी है और वो जो मछली पकड़ रहे हैं वो सिर्फ हिल्सा नाम की जो मछली है वही पकड़ने में व्यस्त है. फिश मॉन्गर्स sold nothing but Hilsa fish. Come buy. The price of Hilsa fish is down today. एंड फिश मॉन्गर्स इसका मतलब यहाँ पे है जो फिश बेचने वाले होते हैं वो भी हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं और जो बेचने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश मिलने से उसकी प्राइस कम हो चुकी है और कम प्राइस में वो फ़िश यहाँ पे बेच रहे हैं. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और हाउस होल्डर्स मतलब जो घर में रहने वाली औरतें होती हैं, घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तक यहाँ पे हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. यू कैन सी अ वुमन इज आस्किंग टू अ मैन हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. देन ही रिप्लाइज टू द वुमन यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. ही सेड दैट यू डिडंट believe. Okay, you wouldn't believe it if I told you means I bought it in a very low price. Okay, and in the palace to the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. और यहाँ पे एक किंग होता है, किंगडम होता है और उसमें जो किंग होता है वो तक की कोर्टियर्स मतलब जो कोर्ट में किंगडम में रहने वाले मतलब राजा के दरबार में रहने वाले जो लोग होते हैं वो तक हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं वो
हिल्सा फिश के बारे में। राजा से भी वो बात करते समय हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रही है। एक आदमी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजा को बता रहा है कि हे राजा, मैंने बहुत ही बड़ी मछली जो हिल्सा फिश थी वो मैंने पकड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं पेज 37 पेज नंबर। स्टॉप इट। इतने में क्या होता है, राजा को गुस्सा आ जाता है। द किंग वॉज वेरी एंग्री हियरिंग द हिल्सा फिश नेम अगेन एंड अगेन इन द कोर्ट। आर यू अ courtier or a fisherman? He says that, are you a courtier or a fisherman? He was very angry at that time. The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty, and here the king also felt guilty by the sentence he uttered to the courtiers. He was very angry, and he also was feeling guilty about what he said. I am so sorry. I lost my temper. It is the season for hilsa fish, and no one here is the season for hilsa fish. Okay, I accept it, but no one is talking about the other things. Everyone is talking about just only about hilsa fish. The king was angry about that thing. No, even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish, not even for 5 minutes. यहाँ गोपाल नाम का जो आदमी है, जो कोर्टियर है, दरबारी है, वो बहुत ही होशियार जाना जाता है, इंटेलिजेंट माना जाता है। यहाँ तक कि राजा को भी उसकी होशियारी का पता है। वो बोलता है कि जो गोपाल है वो तो ये काम कर सकता है कि नहीं कि जो किंगडम में रहने वाले लोग हैं उन्हें ये बात बोलने से, मतलब फिश के बारे में बोलने से वो चुप करा सके। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। और वो बोलता है कि हे राजा, मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। यहाँ पे राजा जो है गोपाल को एक चैलेंज देता है कि तुम एक काम कर सकते हो, फिर मार्केट से कुछ फ़िश लेके, हिल्सा फिश, बड़ी वाली फ़िश लेके, मछली लेके यहाँ तक मार्केट से मेरे पास लेके आओ, कोर्ट तक लेके आओ, तो मैं मानूंगा। और वो लाते समय किसी ने भी फ़िश के बारे में बोलना नहीं चाहिए, हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। यहाँ पे जो गोपाल है वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज और निकलता है वहाँ से। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। कुछ दिनों के बाद क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे गोपाल है और उसकी वाइफ है, आप लोग देख सकते हैं। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। उसकी वाइफ जो है वो उसे गोपाल से पूछ रही है कि आप ये क्या कर रहे हैं। देन द गोपाल गिव्स द आंसर, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। वो यहाँ पे जो राजा ने चैलेंज दिया था वो उसे अभी कंप्लीट करने जा रहा है। और वो कहता है अपनी वाइफ से कि मैं अपना ड्रेस, मतलब ड्रेस पहन रहा हूँ, ड्रेस अप कर रहा हूँ ताकि मैं फ़िश बाय कर सकूँ, परचेस कर सकूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। और उसने अपना जो अपीयरेंस था, मतलब वो अपने जो कपड़े थे वो कुछ अलग टाइप के पहन लिए थे, और शेविंग जो थी वो हाफ शेविंग की थी और हाफ वैसी ही बची थी। और उसने अपने चेहरे पे पूरी तरह से जो ऐश होती है वो लगा रखी थी। वो उसकी वाइफ ये सारी बातें देखकर उस हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। एंड शी आस्क्ड टू गोपाल, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। वो फिर से वही बात दोहराता है। ही रिपीटेड द सेंटेंस अगेन एंड अगेन टू हिज वाइफ, आई told you that I am dressing up to buy a hilsa fish. Okay, listen to me please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? और वो बोलती है कि इतने ख़राब कपड़ों में, इतने गंदे कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ? You don't understand. Okay,
just let me go out to buy a hilsa fish. Gopal goes out of the house. It's happened to him. He's gone mad. यहाँ पे उसकी वाइफ जो है वो बोलती है कि तो गोपाल तो इसी तरह से करता ही रहता है, मतलब उसे उसकी आदत पता है. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड टॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. वो मार्केट से मछली खरीदता है, हिल्सा फिश खरीदता है और मार्केट की तरफ से पैलेस की ओर चलने लगता है. यू कैन सी in the picture there are many people in the market and Gopal in the appearing the beggar's clothing. Okay, and you can see the hilsa fish in his hand and everyone is looking towards Gopal, not to the hilsa fish. Mother, look at that man, isn't he comical? The child is talking to his mother about the Gopal and he said that isn't it a comical, isn't he is a comical. मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो तक हिल्सा फिश की तरफ नहीं देख रहा, वो भी उस बेगर की तरफ ही देख रहा है. ही मस्ट बी अ मैड मैन. लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, शायद वो पागल आदमी होगा. हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक. मुझे लगता है वो शायद पागल ही है या कोई रहस्यमयी ऐसा आदमी वो लग रहा है. वेन गोपाल रीच द कोर्ट, यहाँ पे अभी मार्केट से वो कोर्ट तक पहुँच चुका है. सम गार्ड्स आर आउट ऑफ द पैलेस हियर. यू कैन सी. व्हाट डू यू वांट? दे आस्क्ड गोपाल. आई वांट टू सी द किंग. ही सेड दैट आई वांट टू सी द किंग. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू. तुम किंग से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ. यू कांट सी द किंग, यू कांट मीट टू द किंग. ओके, यू हैव टू गो फ्रॉम हियर. द guard said to the Gopal. Gopal began to dance and sing loudly. He was very intelligent person. He started to sing loudly and dance at the out of the court so that the king can recognize the sound of Gopal and ask to bring. Inside the palace, the man is crazy. The king was hearing the sound of Gopal. Throw him out at once. The king said that throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Here the Gopal was asking again and again to the guards. I want to see the king. Let me go inside the court. Okay. Bring that man to me at once. The king was angry and he said that bring that man to me at once. उस आदमी को मेरे पास यहाँ पे लेके आओ. Yes, your majesty. The guard said, जी राजा, मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ. गोपाल was brought before the king. यहाँ पे गोपाल को राजा के सामने लेके आया जाता है. It's Gopal, said the another courtier in the court. Okay. The man has lost his mind. यहाँ पे बाकी जो कोर्टियर्स है वो बोलते हैं कि इसका माइंड, मतलब ये जो है गोपाल जो है ये अभी पागल हो चुका है, इसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. इसका हुलिया तो आप देखो. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ उसका जोक होगा, मतलब कुछ ना कुछ हंसाने के लिए ये सब कर रहा होगा. ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट. वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन. यहाँ पे किंग जो है वो सवाल पूछ ही लेता है कि गोपाल तुम अब मुझे बता दो, ये तुमने जो पोशाक किया है, ड्रेसअप किया है, ये किस लिए किया है? इतना मज़ा किया टाइप का तुमने ड्रेस क्यों पहना है? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. यहाँ पे गोपाल आंसर देता है, मुझे लगता है राजा कि आप भूल चुके हैं, आपने कुछ मुझे चैलेंज दिया था, मतलब कुछ बात कही थी. फॉरगॉटन समथिंग. राजा को सच में यहाँ पे कुछ याद नहीं होता, वो सोचने लग जाता है. स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. मुझे लगता है बहुत ही, मतलब मेरे हाथ में जो हिल्सा फिश है उसके बारे में किसी को भी अभी इंटरेस्ट नहीं रहा है. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस and
in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश. मार्केट से लेके कोर्ट तक और इवन कोर्ट में भी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की है. ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. यहाँ पे राजा को वो बात याद आ जाती है. हा हा. Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. यहाँ पे राजा भी बहुत हैप्पी हो जाता है. The king was very happy and he congratulates to Gopal and he said that you have achieved the impossible thing once again. This is an example of comic story. You can see the pictures and you can understand the story by reading the dialogues uttered by the characters and some of pictures given in the story. So students, how you feel the story? Tell us and comment in the comment box, and also subscribe to our channel for getting upcoming videos. Okay children, till take care. Bye bye.